Hello everyone. Welcome to all at Unacademy and Wi-Fi study channel here. Our subject is control system. This one is the lecture number 3 and lecture 1, 2 we have already completed here. And in lecture number 3 we have to discuss here transfer function, type and order of the system, and next we can discuss here pole zero concept. Before starting, first about myself, this is Atul Prajapati, BTech MTech from NIT Allahabad, and I have 7+ year teaching experience in GATE, ESC, and PSUs, and 6 time GATE qualified with the good rank, and taught 200+ batches for GATE ESC in reputed coaching all over the India, and I have also taken the many GATE special classes in many university. One of them is Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology in Andaman Nicobar, Iceland. Okay, and 2 year teaching experience in Bir Bahadur Singh Purvanchal University. Work as a assistant professor here. Okay, suppose if you want to take the Unacademy subscription, then there is the step here. First step is you have to select the Unacademy Learning app in Google Play Store, and you have to install here. And third process is you have to select the your interest. Means suppose you are interested in GATE ESC, then select here GATE ESC. And step 4 is you have to select plus subscription. There are many free courses as well as special classes there. Next, you have to take the GATE subscription. Again, step 6, you can take either 12-month or 24-month. Just apply the coupon, that is promo code, that is APP10, and you can get here minimum 10% discount. Minimum 10% discount here. Clear? And suppose if you have any problem, then you can free to ask here. This is my contact number. Clear? And there is a debit card, EMI, UPI, wallet, and net banking here. If you are interested, you can apply here and you can go through the good and best teacher of all over the India. There are the top educator available here. Suppose if you are not comfortable with one teacher, you can go through the next teacher. This is the big advantage for all your student, my dear friend. Clear? Okay, next. We are going to start here transfer function, and suppose if I ask you what is the definition of the transfer function, then simply we can write here transfer function. Transfer function equals to, we can say here, Laplace transform of output upon Laplace transform of input. Laplace transform of output upon Laplace transform of input. Suppose any system y output is yt, then Laplace of this one is ys. And suppose any system where input is xt, then Laplace of this one is xs here. And second, one of the most important condition, what? Initial condition. Initial condition must be initial condition must be 0. This one is the most important here, because when we discuss about the transfer function, there is the condition this transfer function is valid for only LTI system. I repeat, this transfer function is valid for LTI system, my dear student. You have to repeat here bar. Clear? Transfer function is valid for only LTI system. That's why we are making the initial condition 0. For making the linear form, we are making the initial condition here 0. Clear? And what is the meaning of time invariant? Time invariant means when we are changing the input, delay or advance, and same amount of changing the output. If there is no any issue, then this one is the time invariant in layman language. And what about the linearity? If it is follow the superposition, or we can use two law here. First one is homogeneity and second one is additive. If follow these two law, then system must be a linear. Clear? Then transfer function, this transfer function, when we talking about the transfer function, is Laplace transform of output upon input, then there must be an initial condition of 0. And interviewer may ask you why we are making the initial condition 0, because we have to make in form of linear. Okay, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कैसे हम कर रहे हैं इसको. सपोज वी हैव राइट हियर yt इक्वल्स टू d by dt of xt. Suppose if I take the Laplace of this one, then what is the Laplace of this one? We have to write here ys, and this one is sxs,
and there is the some initial condition that is s of 0. Clear? Okay, suppose if I ask you what is the value of ys upon xs? We cannot determine the value of ys upon xs from this equation because there is the some constant or DC term here. Clear? Due to this, we cannot find the ys upon xs. That's why we are making the initial condition 0. If I make this initial condition 0, what is the meaning of initial condition? You have to understand here. Suppose any capacitor here, then charge is stored or voltage is stored across, we have to make it 0. And if it is inductor, then initial current we have to make it 0 because we have to make in form of ys upon xs. Clear? एंड इससे क्या इसका ड्रॉबैक मिलेगा बता सकते हो? इनिशियल कंडीशन 0 होने से क्या हुआ कि हमने जो भी चार्ज पे पहले से स्टोर इंफॉर्मेशन थी उसको हमने क्या कर दिया, पूरा लॉस कर दिया वहां पे. ठीक है, टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन वी हैव टू मेक द इनिशियल कंडीशन 0. क्लियर? और एक से ध्यान रखना, yt इक्वल्स टू xt with any constant term is always been non-linear. I repeat, this one is non-linear. अब इसको ये मत समझना y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी. ठीक है, इसके ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, यहाँ पे क्या है, आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है. ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे. ठीक है, तो yt इक्वल्स टू xt प्लस एनी कांस्टेंट दैट इज ऑलवेज बी नॉन लिनियर. क्लियर है? और लिनियरिटी वो सब डिस्कस होता है, सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, बट आपको इतना आइडिया होना चाहिए. यहाँ पे देखो इनपुट है और इसके साथ कांस्टेंट होगा, दिस वन इज नॉन लिनियर. ओके ओके, मैं लिनियरिटी को समझा भी दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. सपोज वी हैव अ सिस्टम S1. क्लियर? एंड सेकंड सिस्टम वी हैव गेटिंग हियर S2. ओके, we are providing x1, this one is x2. We are adding here, we are getting the output, no problem. Again suppose we are adding first, again passing through the system, this one is the output y2. If y1 equals to y2, then system is, this equation is linear, otherwise non-linear. Sorry, this one. देखो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट बोल दिया, मैंने बोला कि yt equals to xt plus 2. This one is linear or non-linear? Check here. यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, यहाँ से x1 आया तो इसमें 2 ऐड कर देगा, तो x1 plus 2. यहाँ पे भी क्या करेगा, x2 plus 2. दोनों को ऐड होगा यहाँ पे तो क्या होगा, x1 plus x2 plus 4 हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे जैसे दोनों ऐड हो जाएंगे x1 plus x2, सिस्टम क्या करेगा, प्लस 2 ऐड करेगा, x1 plus x2 plus 2. क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लिनियर हो जाएगा. ठीक है, सिग्नल सिस्टम को पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है उसमें देख लेना आप. ठीक है, बट इतना आइडिया होना चाहिए आपको. क्लियर? ओके, we have to make the initial condition here 0. Suppose if I take the input here xt equals to what, delta. Okay, suppose मैंने इनपुट डेल्टा लिया तो जो इसका रिस्पांस आएगा, रिस्पांस मीन्स आउटपुट. आई रिपीट, response means simply we can say here output. Means suppose we are applying the input delta, that response is called as unit impulse response. And suppose if I apply the ut here, that response is called as unit step response. Suppose if I apply the input rt, that response is called here what, ramp response. That response is called as ramp response. Clear? Okay, this one is delta, ut and rt here. Clear? Come to the next here. Suppose we have a transfer function yt, output is yt xt here. If xt is, if I take here delta, then what is the Laplace of this one, xs equals to, we can say here 1. Then what is the transfer function? Transfer function is what, ys upon xs. What is the value of xs? That is equals to 1. And this one is kya, ys. Means what I am trying to say. And what about this ys? This one is the impulse response. Means, or we can say here, this one is the Laplace transform of impulse response of system. This one is the another definition of the transfer function.
means transfer function equals to Laplace transform of output upon input, or we can say in other hand, this one is also defined as Laplace transform of impulse response of the system. मीन्स कभी भी इम्पल्स रिस्पांस आपको गिवन हो और उसका ट्रांसफर फंक्शन पूछे तो डायरेक्ट उसका लाप्लास, कहने का मीनिंग क्या है कि अगर सपोज ऐसे बोल दिया, इफ द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज गिवन e to power minus 3t ut, then find the transfer function, just take the Laplace of this one. If I take the Laplace of this one is equals to 1 upon s plus t. Clear? This one is the transfer function here. Means what I'm trying to say here, suppose we have a unit step impulse response, clear? Unit step response, parabolic, sorry, ramp response, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, पैराबोलिक. कहने का आपको मीनिंग समझना पड़ेगा. देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज आपको इम्पल्स रिस्पांस का आइडिया है और आपको यूनिट स्टेप रिस्पांस निकालना है, तो आप सिंपली इंटीग्रेट कर दो. ठीक है, यूनिट स्टेप रिस्पांस का आइडिया रैंप रिस्पांस, तो अगेन इंटीग्रेट कर दो. इसको निकालना तो इंटीग्रेट कर दो. कहने का मीनिंग क्या है, if unit impulse response is given, if I want to find out the ramp response, then we have to integrate two times. Clear? If we have to integrate here two times. And suppose हमारे पास क्या रैंप रिस्पांस है और हम यूनिट स्टेप रिस्पांस चाहते हैं, we have to differentiate. We have to differentiate here. Clear? ओके, यूनिट स्टेप रिस्पांस है, इंपल्स रिस्पांस चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. Means suppose if question is given, if the unit step response of the system yt equals to given 1 minus e to power alpha t for t greater than 0, then find the impulse response, of the system. Then what we have to do, just differentiate here. If I differentiate this one, we can write here one differentiation of 1 is 0, and again we can write here e to power minus alpha t. ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना. इस पे क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं. ये आपको बहुत ध्यान रखना है, 100%. इसको रिवाइज करके जाना जब आपको लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो. ठीक है. और सपोज में यही पूछ देता कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, इफ द यूनिट स्टेप रिस्पांस इज गिवन, find the transfer function, just find the impulse response by differentiating. Again take the Laplace of this one, that is alpha upon s plus alpha is the transfer function. Clear? समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं. यहाँ पे और भी कई सारे मेथड निकालने के, तो आप ये समझ चुके होंगे, आई थिंक सो. अब हम बात करते हैं जो हमने ट्रांसफर फंक्शन अभी स्टडी कर रहे हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें क्या ड्रॉबैक है, क्या प्रॉब्लम आती है. इस ट्रांसफर फंक्शन में क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एलटीआई के लिए वैलिड है, मींस नॉन लीनियर के लिए वैलिड नहीं है. ठीक है. दिस ट्रांसफर फंक्शन, जो ट्रांसफर फंक्शन पहले हम बात कर रहे थे, दिस वन इज वैलिड फॉर ओनली CSI SO, मींस सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट. बट दिस वन इज नॉट वैलिड फॉर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट. ठीक है. देखो प्रैक्टिकल सिस्टम ऐसा तो होगा नहीं कि एक इनपुट देंगे और एक आउटपुट आएगा. हम कई सारे इनपुट क्या करते हैं, एक साथ देते हैं. उस टाइप के सिस्टम में हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन की डिफिनेशन करेक्ट. ठीक है. और हमारा जो है इनिशियल कंडीशन जीरो करने से कुछ इंफॉर्मेशन लॉस होता है, ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है. तो इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम किसके स्टडी करते हैं, हम लास्ट में सबसे स्टडी करेंगे इसकी स्टेट वेरिएबल एनालिसिस. ठीक है, स्टेट स्पेस एनालिसिस. तो लास्ट में होगा, उसको हम देखेंगे अभी. बट आपको इतना पता होना चाहिए कि लिमिटेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन की ये कंडीशन. क्लियर? ओके. सपोज मैं यहाँ पे बोल दूं, देखो मैं कह दूं कि यहाँ पे इफ द impulse response of the system is given yt equals to e to power minus 40 ut, then find the unit step response.
यू हैव टू फाइंड द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे 0 to infinite में e to power minus 40, sorry, you have to integrate from minus infinite to t, ठीक है, वेरिएबल आना चाहिए ना ut dt, बट ड्यू टू ut क्या हो जाएगा, लिमिट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से लिमिट ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा 0 to t e to power minus 40 ut, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, इसको करोगे तो -1/4 और यहाँ पे e to power क्या हो जाएगा -40, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीन्स 1 माइनस e to power 40 अपन क्या हो जाएगा, ये क्या आ चुका है, हमारा स्टेप रिस्पांस आ चुका है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, वही ट्रांसफर फंक्शन होगा, बिकॉज दिस वन इज द इम्पल्स रिस्पांस, एंड लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन इज 1/s+4, ट्रांसफर फंक्शन मींस ys/xs। क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था यूनिट स्टेप रिस्पांस, देन वी कैन राइट हियर ys इक्वल्स टू xs मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 1/s+4। What is the input? Input is what? Access is क्या अप्लाई किया गया, यूनिट स्टेप अप्लाई किया गया, तभी तो रिस्पांस आएगा, यूनिट स्टेप रिस्पांस। Then we can write here 1/s+4 into 1/s. Again we have to do the partial fraction b/s+4. Okay, just if I want to find out the value of a, cross multiply cancel, a equals to क्या हो जाएगा 1/4. What about b? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, b equals to क्या हो जाएगा -4. Then we can say here 1/4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/s 1/s+4. If I take the inverse Laplace of this one, that is 1 minus e to power 40, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ut का मल्टीप्लाई, यहाँ भी ut का मल्टीप्लाई। कहने का मीनिंग क्या है कि आपको दो मेथड है, इसमें से कोई भी मेथड आप ले सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, व्हाट? स्टडी स्टेट डीसी गेन। स्टडी स्टेट डीसी गेन मींस we are putting here s equals to 0. Why we are putting the s equals to 0 here? This one is the most important. Why we are putting the s equals to 0? Because s is what? S equals to, we can write here sigma plus j omega. S equals to sigma plus j omega. Clear? तो हमारे पास क्या हो सकता है, आइदर 1/s-2 हो सकता है, या 1/s+2 हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है 1/s² + 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारे लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड या इमेजिनरी एक्सिस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दो पोल कहाँ पे लाई करा, s इक्वल्स टू 2 पे, यहाँ पे s इक्वल्स टू -4 पे, यहाँ पे s इक्वल्स टू +-2j। क्लियर है? ओके, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सिग्मा क्या हो सकता है, सिग्मा क्या हो सकता है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 है, बट यहाँ पे जे ओमेगा वाला टर्म जो होता है वो क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब समझना यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा हूँ। सपोज केवल ऐसा फंक्शन होता, केवल सिग्मा वाला होता, तो आइदर क्या होता, इंक्रीज होता या क्या करता, डिक्रीज करता, क्योंकि इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो e टू पावर क्या आ जाएगा 2t, इसका क्या हो जाएगा e टू पावर -2t, तो इसका ग्राफ ड्रा करोगे e टू पावर 2t का तो ऐसा होगा, और e टू पावर -2t का ड्रा करेंगे तो ड्रा डाउनवर्ड आएगा, इधर अपवर्ड रहेगा, ठीक है। इसका करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ 2t टाइप का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो चाहे ना हो, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे आ चुका है, तो इसको साइन 2t मीन्स ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूँ इतना कुछ, ठीक है, समझना। यहाँ पे स्टडी स्टेट डीसी गेन की बात हो रही है, अगर डीसी गेन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ होगा, डीसी गेन का ग्राफ, ठीक है, कांस्टेंट होगा। क्या ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है क्या, मीन्स इंक्रीज डिक्रीज नहीं करा, तो इसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करा ना, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो चुका है 0। क्या ये ऑसिलेट कर रहा है क्या, ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो चुका होगा 0। तो अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तीनों 0 हो चुका है, तो s इक्वल टू क्या पुट कर देंगे डायरेक्ट, मीन्स जब भी क्वेश्चन में स्टडी स्टेट डीसी गेन की बात करें तो आप डायरेक्ट वहां पे क्या पुट कर देना, s इक्वल टू 0। आपको लॉजिक ये समझाना था एक्चुअली, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पर आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि स्टडी स्टेट डीसी गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं।
और क्यों ऐसे करते हैं, एस इक्वल टू 0 क्यों पुट करते हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं जाएगा, बट इसके एनालिसिस से बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ चीजें और बता दूं। जैसे मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर को हम इम्पीडेंस फॉर्म में लिखते हैं 1/CS। इंडक्टर है, सपोज वी हैव इंडक्टर, या इंडक्टर होगा तो इसको क्या लिखते हैं, एल एस लिखते हैं। ठीक है, इसको इम्पीडेंस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, इम्पीडेंस फॉर्म एल एस लिखते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं 1/j⍵c, इसको क्या लिख सकते हैं, j⍵l भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसके इम्पीडेंस के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1/ω⍵c, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फॉर द नेटवर्क सोन इन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RL such that V0/Vi is 1/2 RCS। ठीक है, यहाँ पे एक नेटवर्क गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे RL की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी इन टर्म्स ऑफ R। सबसे पहले क्या करो, इसको इम्पीडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इम्पीडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको पहले क्या करोगे, लिख लोगे 1/CS लिख लेंगे। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो R1 into R2 अपॉन R1 plus R2। ठीक है, that is equals to R equivalent. You can write here RL into 1/CS upon RL plus 1/CS. This one is the impedance here. Then we can write here, suppose if I represent with Z0, then Z0 equals to what we can write? Z0 equals to, we can write here RL upon R RL CS plus 1. ठीक है, Z0 equals to this one RL upon RL CS plus 1 here. Clear? Then what we can write, V0 upon Vi, that is equals to RL upon RL CS plus 1 upon RL upon RL CS plus 1 plus R। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बता दो। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, देखो इन डिनोमिनेटर वाला कैंसिल होगा यहाँ पे, तो RL क्या आ जाएगा, RL RL प्लस R RL CS प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बता दो, RL अपॉन RL प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, R इंटू RL CS प्लस R हो जाएगा। ओके, RL से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R प्लस RL अपॉन RL प्लस RCS हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इससे कंपेयर करो, इस वाले से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, V2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मीन्स R प्लस RL अपॉन RL दैट इज इक्वल्स टू 2। देन RL इक्वल्स टू व्हाट, RL equals to R is the correct answer. RL equals to R is the correct answer, option B। ठीक है, ये तो मेथड था आपका, कन्वेंशन मेथड था, बट मैं इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करूं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है RL, यहाँ पे क्या था C था। क्लियर? एंड V0 अपॉन Vi क्या गिवन था, 1/2 प्लस RCS, ये तो गिवन था 1/2 प्लस RCS। ठीक है, अब ध्यान से सुनो आप। देखो मैं स्टडी स्टेट डीसी गेन की बात करूं, मैं डीसी एनालिसिस स्टडी स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिखते हैं, 1/CS लिखते हैं, तो S इक्वल टू क्या पुट कर देंगे आप, स्टडी स्टेट डीसी गेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे S इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 0, और S इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इम्पीडेंस इनफाइनाइट या रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, सिंपली ओपन सर्किट। रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस 0 होने का सिंपली मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट। जैसे ही यहाँ पे S इक्वल टू 0 मैंने पुट किया और यहाँ से क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो सर्किट हमारी ये बन जाएगी, मींस V0 and this one is Vi। When we talking about the V0 upon Vi, then what we can write, V0 upon Vi, यहाँ से क्या, वोल्टेज डिवाइडर रूल, हमें किसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना, RL के क्रॉस, then we have to write RL upon टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन। अब जो ट्रांसफर फंक्शन दिया था उसमें भी S इक्वल टू 0 पुट करो, हम लिखेंगे 1/2। Then we can write here RL upon RL plus R that is equals to 1/2।
then we can say here 2 RL equals to RL plus R, then R equals to what? क्लियर? एक मेथड ये भी आप इससे अप्रोच कर सकते हो, आंसर वही है। क्लियर? अब सेम कहानी ऐसे ही इसमें भी है। इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखना है मुझे, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन सी एस, जबकि ऑलरेडी सी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन सी एस प्लस आर प्लस 1 अपॉन सी एस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन आर सी एस प्लस 1। यहाँ से आर सी को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 माइक्रो फैरेड, दैट इज इक्वल टू 2 मेगा फैरेड। क्लियर? अगर सपोज किलो में पूछ सकता है तो आप उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। टाइप्स एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मीन्स व्हाट? जब भी टाइप और ऑर्डर की बात करेंगे तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, सपोज कभी भी कोई ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है, मैंने अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लिया जीएस इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस टाउ 1 एस, 1 प्लस टाउ 2 एस, 1 प्लस टाउ 3 एस एंड सो ऑन। ठीक है, अपन 1 प्लस टाउ p1 s, 1 प्लस टाउ p2 s एंड सो ऑन, और यहाँ पे s टू पावर लेमडा। मीन्स यहाँ पे जो लेमडा टर्म है ना, लेमडा इंडिकेट द टाइप ऑफ सिस्टम, लेमडा इंडिकेट द टाइप ऑफ द सिस्टम। कभी भी s इक्वल्स s टू पावर 0 है तो मीन्स क्या इंडिकेट करेगा? टाइप ऑफ द सिस्टम इज 2। व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम? मीन्स ऑर्डर ऑफ द सिस्टम मीन्स highest order, highest means order of the system is highest power of the denominator is called as order of the system। मीन्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है s s प्लस 1 लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे टाइप इसका क्या है? इसको इतना लाइटली मत लेना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप इज 1, व्हाट अबाउट द ऑर्डर? ऑर्डर इज 2। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री की बात करेंगे डिनोमिनेटर में तो क्या है? 2 है, तो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज। क्लियर है? या ऐसे बात करें तो जैसे 1 अपॉन एस क्या इंडिकेट करता है? इंटीग्रेशन को इंडिकेट करता है, और एस किसको इंडिकेट करता है? डिफरेंशिएशन को। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि टाइप इंडिकेट द नंबर ऑफ इंटीग्रेटर यूज इन द सिस्टम। टाइप इंडिकेट द नंबर ऑफ इंटीग्रेटर यूज इन द सिस्टम। टाइप से हम बताएंगे कि सिस्टम पे एरर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए 1 अपॉन एस वेयर इंटीग्रेशन इज इंडिकेट द टाइप ऑफ द सिस्टम। क्लियर? Next, order of the system. Order of the system is indicate the number of storage element. I repeat, number of independent storage element that are used in the system. That indicate the order of the system. Means कभी भी ऐसा होगा R है और देखो यहाँ पे C, इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर सी एस प्लस 1। यहाँ पे देखो s टू पावर क्या है? 1। वो s टू पावर 1 आने का सिंपली मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट क्या है? 1। केवल इंडक्टर ही कैपेसिटर तो स्टोर करता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरेज एलिमेंट इज। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? अब यहाँ पे पोल जीरो की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पोल जीरो सिंपली आपको समझना है कि कभी भी कोई ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये इंडिकेट करेगा पोल को और ये इंडिकेट करेगा किसको? जीरो को। जैसे मैं लिखूँ s प्लस 1 एंड दिस वन इज s s प्लस 2, तो हम बोलेंगे s इक्वल टू 0 एंड माइनस 2 किसको इंडिकेट कर रहा है? पोल्स को इंडिकेट कर रहा है। और s इक्वल टू माइनस 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? जीरो को। तो ठीक है, ये तो बेसिक है, ये सबको आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में और चीजें डिस्कस की जाएगी, बट आज के लिए इतना ही। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे नंबर 1 स्टडीज चैनल आपको मिलेंगे इंडिया के, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। सपोज यू आर फ्रॉम द साउथ साइड, देन इफ आर नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी एंड इंग्लिश, देन यू कैन सब्सक्राइब हियर Academy Telugu। There are many educator here, ठीक है, टॉप फैकल्टी अवेलेबल हियर, यू कैन सब्सक्राइब एंड गो थ्रू इट। ठीक है, अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, SSC जे हियर, ओके, कैटेक्स गेट एसी एंड IN हियर, ओके, Unacademy get MA Mechanical also here, computer science, okay, clear, okay, and there is the Telegram channel Catrix here,
And suppose if you want to purchase the Unacademy subscription, just apply the APP 10. You will get the minimum 10% discount. You will get the minimum 10% discount here. You will get the minimum 10% discount. क्लियर? आज इतने चीजें डिस्कस हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आप स्टडी करते जा रहे हो, आप क्या करो, क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगो। ये मेरी गारंटी है, आपको इतने ट्रिक दे दूंगा, ठीक है, कि आपको कभी आगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है एक एक पेज में जो किया रहेगा आपका एक लाइन में आंसर रहेगा, और आप देखते जाओ कंट्रोल सिस्टम में कितना मजा आने वाला है। और आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो गेट यस में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड यार लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल यार। थैंक यू सो मच।